حضرات گرامی وقار، میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، آپ نے بڑی بے توجہی کا مظاہرہ کیا۔ آج ہماری قوم کا حال کیا ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو آج ہم جس طرح ہمیں محفل پاک میں بیٹھنے کے آداب بجا لانے چاہیے اس انداز میں ہم محفل میں نہیں بیٹھا کرتے۔ ابھی رات کا اتنا حصہ نہیں گزر گیا کہ چائے پانی شربت سب کچھ چلنے لگا۔ آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی پریشانی کا رونا کہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر، کہیں چوراہوں پر بیٹھ کر، کہیں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر، کہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر رویا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے مسلمانوں، اپنی پریشانی کا رونا رونے کے بجائے خدا کی قسم تم اللہ کے مقدس نبی کے سچے غلام ہو۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کا چاہنے والا، نبی کا ماننے والا، جس طرح نبی سے محبت کا دعویٰ کیا کرتا ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور نبی سے محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈال لے تو میرا ایمان بولتا ہے کہ درود مصطفیٰ کی برکت سے ہماری کتنی پریشانی دور ہوتی ہے۔ بے شک حق بھائی زندہ باد۔ مگر کیا بتایا جائے کہ ہم صرف اپنی پریشانی کا رونا رویا کرتے ہیں۔ درود پاک جیسا پاکیزہ عمل جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اسے اپنی زندگی میں اتارنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اسی ضمن میں میں آپ کو درود پاک کی ایک روایت سنا کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت برگزیدہ ولی ہیں، وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کا نام سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے درود پاک کی جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک کی سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ دلائل الخیرات شریف ہے۔ بے شک پوچھا گیا کہ آخر دلائل الخیرات شریف اتنی معتبر کیوں ہوئی؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے معتبر ہوئی کہ اس میں جتنی بھی درود پاک ہے سب اللہ کے مقدس نبی کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا چکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی دلائل الخیرات شریف کے مصنف سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایک زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے علاقے سے تبلیغ کی غرض سے نکلا۔ آج یہ تبلیغی جلسہ ان تمام تر علماء کرام کی موجودگی میں آپ بیٹھ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت سیکھ رہے ہیں، دین کیا سیکھ رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ کے مسائل سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ولیوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا ہے تو بڑی بڑی مصیبتوں کو بھی برداشت کیا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کو بھی برداشت کیا ہے، دین کی راہ میں بڑی بڑی صعوبتوں کو برداشت کیا ہے۔ سیدنا محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلا، اپنے علاقے کی سرحد کو پار کر کے میں دوسرے علاقے میں جب پہنچا ہوں تو نماز عصر کا وقت قریب آ گیا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ پہلے نماز عصر ادا کی جائے پھر اس کے بعد تبلیغ کے سفر کو دراز کیا جائے۔ میرے دل میں خیال کا آنا تھا ہم مسلمانوں، اے مسلمانوں، جشن عید میلاد النبی میں بیٹھنے والوں، جشن مسلک اعلیٰ حضرت میں بیٹھنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں آج تم نبی سے محبت کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہو، آج تم غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہو، آج تم غریب نواز سے محبت کا دعویٰ تو خوب کیا کرتے ہو، مگر ایک مرتبہ اپنی عملی زندگی کی طرف ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، نگاہ اٹھا کر ڈال کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ آج ہماری زندگی میں صرف محبت رہ گئی ہے۔ نبی سے عاشق، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا صرف محبت کا دعویٰ ہی نہیں کیا کرتا ہے، پہلے نماز کا وقت قریب آیا ہوتا ہے تو نماز کی پابندی کیا کرتا ہے، قرآن گھروں میں ہوا کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا کرتا ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچایا کرتا ہے، اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ
मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाया करता है। सिर्फ नबी की मोहब्बत का दावा ये नहीं कि नबी से मोहब्बत का दावा हम करें, उनके नाम पर नारा लगाते नजर आए। नबी से मोहब्बत का दावा सिर्फ ये नहीं कि नबी का नाम आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ने में भी हम कतराते नजर आए और इधर उधर बेतवज्जोही का मुजाहिरा करते नजर आए। सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली अपनी जिंदगी का वाकया बयान फरमाते हैं, नमाज असर का वक्त करीब आया है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि पहले नमाज असर अदा की जाए। मैंने नमाज असर अदा करने के लिए पानी तलाश करना शुरू किया है। जिस इलाके में मैं गया था मैंने पानी तलाश करना शुरू किया तो मैंने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई है, मुझे पानी नहीं मिला। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इस इलाके का कोई बंदा मुझे नजर आ जाता तो मैं उससे मदद लेता और उसे पानी पूछ करके, पानी का पता पूछ करके मैं वजू कर लेता। तो यकायक मैंने देखा है कि एक जानिब से 6 साल की बच्ची या 8 साल की बच्ची मेरी निगाह के सामने आती नजर आई। मैंने उस बच्ची को करीब बुलाया, ऐ बच्ची मैं तेरे इलाके में अजनबी हूँ, मैं तेरे इलाके में अजनबी हूँ, मैं तेरे इलाके में किसी को जानता नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए तबलीग की गर्ज से मैं तेरे इलाके में आ गया था। उस बच्ची ने कहा हुजूर आप पूछना क्या चाहते हैं? आप फरमाते हैं बेटी मैं इस इलाके में तबलीग की गर्ज से आया था, नमाज का वक्त आ गया है तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ है कि पहले नमाज अदा कर ली जाए। ऐ बच्ची तू मुझे पानी का पता बता दे ताकि मैं पानी हासिल करके वजू करूं, वजू करने के बाद नमाज अदा करूं। उस बच्ची ने कहा हुजूर वो सामने जाइए आपको एक कुआं नजर आएगा, उस कुएं पर आप निगाह डालेंगे पानी आपको मिल जाएगा। आपने देखा है कि वो कुएं के करीब आपने कदम बढ़ाया है, जब कदम बढ़ा कर गए तो आपने देखा कुआं तो मौजूद है, कुएं में पानी भी मौजूद है, मगर कुएं में पानी निकालने के लिए न डोल है न रस्सी है। आपने उस बच्ची को बुलाया है, ऐ बच्ची तो मेरी और मदद कर देती, तू मुझे कुएं के पता बताने के साथ साथ डोल और रस्सी का भी इंतजाम कर देती। उस बच्ची ने कहा हुजूर आपका नाम क्या है? उस बच्ची से आपने फरमाया कि बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली है। उस बच्ची ने कहा हुजूर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि मेरे इलाके में अगर कोई परेशान, किसी के पास कोई परेशानी आया करती है तो लोग आपकी बारगाह में लेकर जाया करते हैं, आप उनके लिए दुआ फरमा देते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ की बरकत से उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। मगर मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपको इस कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ रही है। आपने उस बच्ची से फरमाया है, ऐ बच्ची क्या तुझे मालूम नहीं है कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत पड़ा करती है? आपने फरमाया बच्ची से, तो बच्ची ने पलटकर जवाब दिया हुजूर इस कुएं से पानी निकालने के लिए आपको डोल और रस्सी की जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं है। आपने फरमाया बेटी तू बगैर डोल और रस्सी के पानी निकाल देगी? वो बच्ची ने कहा हुजूर हाँ मैं बगैर पानी के, बगैर डोल और रस्सी के पानी निकाल दूंगी। आपने फरमाया बेटी निकाल कर दिखा दे। उस बच्ची ने आपका हाथ पकड़ा है, आपको कुएं की जानिब ले जाती है। वो बच्ची ने कुएं की जानिब निगाह दौड़ाई है, निगाह कुएं पर डाली है और डालने के बाद उस बच्ची ने उस कुएं पर अपना थूक डाला है। आप फरमाते हैं उस बच्ची का थूक उस कुएं के पानी पर पड़ना था। मैंने देखा है कि कुएं का पानी खुद ब खुद उस बच्ची के थूक की बरकत से ऊपर आता हुआ नजर आया है। तो मैंने उस बच्ची से पूछा, ऐ बच्ची आखिर ये बता तेरी जिंदगी में इतनी बरकत कहां से आ गई, तेरी जिंदगी में इतना असर कहां से आ गया? तो उस बच्ची ने कहा था हुजूर जब से मैंने अपने घर में आंख खोली है मैंने तोतली जबान से बोलना शुरू किया था। तो बचपन से ही मेरे घर वालों ने मुझे मुस्तफा से इश्क करना सिखाया था, सहाबा से इश्क करना सिखाया था, अहले बैत से इश्क करना सिखाया था। मैं इन तोतली जबान को लेकर तब से लेकर अब तक मदीने वाले आका पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ती हूँ। ये दुरूद मुस्तफा की बरकत है कि अल्लाह ने मेरी जबान में इतना असर पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाह 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 बहुत अच्छा जिंदाबाद माशाअल्लाह। उस बच्ची ने कहा हुजूर बचपन में मैंने तोतली जबान से जब बोलना शुरू किया था तो बचपन से ही मेरे वालिदैन ने मुझसे मुस्तफा का इश्क करना सिखाया था। आज मैं तमाम तर सुन्नी मुसलमानों तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तुम अपनी परेशानी का रोना तर रोया करते हो, चौराहों पर बैठ जाओ तो अपनी परेशानी का रोना रोने लगते हो, शादियों की तकरीब में बैठ जाओ तो
अपनी परेशानी का रोना शुरू कर देते हो। खुदा की कसम तुम्हारी परेशानी इस तरह दूर नहीं हो सकती है। अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दो, मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर अमल करना शुरू कर दो। मुस्तफा से इश्क करने के साथ साथ मुस्तफा पर दरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दो। तो खुदा की कसम मेरा ईमान है कि दरूद मुस्तफा की बरकत से हमारी परेशानी दूर होती नजर आएगी। ये तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस है। हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने तो हमें दरूद पाक पढ़ने का कैसा बेहतरीन तरीका बताया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें नबी पर दरूद पढ़ना है तो इस अंदाज में पढ़ते नजर आओ कि काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम तो आला हजरत के मानने वाले हो, हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत ने हमारी हर जगह रहनुमाई फरमाई है। आज उस बच्ची ने सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली को उस वक्त क्या जवाब दिया था, आज उस जवाब से हमें और आपको इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। जिन उम्र में उस बच्ची ने दुरूद पाक पढ़ के अपनी ज़बान में इतनी तासीर पैदा की थी, उस बच्ची ने कहा था हुजूर ये किसी और की बरकत नहीं है, ये दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत है। आज जिन उम्र में हम अपने बच्चों को हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल दे करके कार्टून जैसे और फिल्म ड्रामे जैसे मनासिर दिखाया करते हैं, उस उम्र में उस बच्ची ने कहा था हुजूर मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत इस अंदाज में नहीं की है, मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क करना सिखाया था। मुस्तफ़ा की जिंदगी का पहलू मेरी निगाहों के सामने रखा था, फातिमा ज़हरा की जिंदगी का पहलू मेरी निगाहों के सामने रखा था, जिसकी वजह यह है कि आज मेरी ज़बान में इतना असर आप देख रहे हैं। ऐ मुसलमानों, आज तुम्हें बेदार होने की जरूरत है। आज तुमने अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ अपनी मस्जिदों को वीरान रखा है। यही वजह है कि तुम तबाही की तरफ जा रहे हो। आज मुस्तफ़ा की तालीमात से तुमने अपने आप को दूर रखा है, यही वजह है कि तुम परेशानी की तरफ जा रहे हो। आज मुस्तफ़ा की तालीमात पर हमने अमल किया होता तो ज़माना आज हमें आँख उठा कर न देख रहा होता। आज मुस्तफ़ा के बताए हुए रास्ते पर अगर हमने अमल किया होता तो ज़माना आज हमें इस तरह जलील करता हुआ न नजर आता। उठाकर देखो अपने असलाफ की तारीख, जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन को छोड़ा है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की तालीमात को अपने सीने से लगाया है। आओ वक्त के एक कलंदर सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक गुलाम की मैं तुम्हें जिंदगी बताता चलूं। तुम ये चाहते हो, तुम सोचते हो आज हम परेशानी का रोना रो रो कर होटलों पर अपनी परेशानी को दूर कर लोगे। खुदा की कसम हरगिज़ तुम्हारी परेशानी ऐसे दूर होने वाली नहीं है। अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो, अपनी परेशानी का हल, अपनी परेशानी का सबब तलाश करना चाहते हो तो तुम्हें मस्जिद की तरफ आना होगा, तुम्हें कुरान से लौ लगानी होगी, तुम्हें मुस्तफ़ा की तालीमात पर अमल करना होगा। उठाकर देखो सैयदना उमर फारूक आज़म का दौर है। कौन उमर फारूक आज़म जो अमीरुल मोमिनीन है, कौन उमर फारूक आज़म जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, कौन उमर फारूक आज़म जो मुराद मुस्तफ़ा है, कौन उमर फारूक आज़म, उन्हीं की जिंदगी उठाकर देखो। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। वही सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने अपने एक गुलाम हजरत अमर बिन आस को एक इलाके का मुसलमानों का कमांडर बनाकर भेजा है कि तुम जाओ मुसलमानों के दरमियान तबलीग करो, मुसलमानों को समझाओ, मुसलमानों दीन के रास्ते पर आ जाओ, नबी की शरीयत पर अमल करने वाले बन जाओ, नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल करने वाले बन जाओ। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने अपने गुलाम हजरत अमर बिन आस को इस बात की ताकीद भी की है, इस्लाम की सिर्फ तुम्हें हर तरफ जहां भी कदम रखना है, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम की तबलीग करना है, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार ज़माने के सामने रखना है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने हजरत अमर बिन आस को एक इलाके का कमांडर बनाकर भेजा। जैसा जैसा वक्त आया हम मुसलमान तमाम मुजाहिदीन इस्लाम की तबलीग करते रहे, मुसीबतें सहते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, सौबतें सहते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, मशक्क़तें बर्दाश्त करते रहे, इस्लाम की तबलीग
तबलीग करते रहे। वक्त आया, जरूरत पड़ी तो जंग भी करने के लिए मैदान कारजार में उतर गए। हजरत अमर इब्ने आस जिस मैदान में कदम रख रहे हैं, मुजाहिदीन इस्लाम को लेकर कामयाबी का मैदान फतह करते नजर आ रहे हैं। कोई मैदान में आपने कदम रखा है, एक दिन गुजरा नहीं कि मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, दूसरा दिन गुजरा नहीं कि मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, तीसरा दिन गुजरा नहीं कि मुसलमानों को कामयाबी मिल गई। एक जंग में हजरत अमर इब्ने आस को कामयाबी मिले, एक हफ्ता गुजर गया। आपके दिल में ख्याल आया कि आखिर क्या वजह है, हम लोग जिधर भी गुजरा करते थे, जिधर पे भी गुजरा करते थे, जिस भी मैदान में हम कदम रख दिया करते थे, मुसलमानों को कामयाबी मिल जाया करती थी। आखिर यह क्या वजह है कि हम लोगों को एक हफ्ता गुजर गया, कामयाबी नहीं मिल रही है। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ। आपने उमर इब्ने खत्ताब, कौन उमर इब्ने खत्ताब जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, कैसी सादगी भरी जिंदगी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर इब्ने खत्ताब गुजार रहे हैं। आपने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को एक खत लिखा है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम मुसलमानों ने एक जंग में कदम रखा है, एक हफ्ता हो गया, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। आखिर इससे पहले तो ये मुआमला था, हम किसी भी मैदान में कामयाबी के लिए कदम रखा करते थे, एक दो दिन में कामयाबी का मैदान फतह कर लिया करते थे। एक हफ्ता हो गया, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने अमर बिन आस का खत पढ़ा है। खत पढ़ने के बाद आपने उस खत में जवाब में लिखा है कि ऐ अमर इब्ने आस, अपने मुसलमानों में, अपने गुलामों में, अपने मुजाहिदीनों में तुम इस बात को तलाश करो कि तुम में से कोई किसी से नबी की कोई सुन्नत तो नहीं कज़ा हो रही है। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जवाब लिखा है कि मुसलमानों में तलाश करो, किसी से नबी की कोई सुन्नत तो कज़ा नहीं हो रही है। बात यहाँ फर्ज की नहीं है। आज हम 5 वक्ता नमाज़े, फर्ज नमाज़े कज़ा करते चले जा रहे हैं, मगर आज हमारी आंखों से शर्म और नदामत के आंसू बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं हो रही है। आज हम हज फर्ज होने के बावजूद, हज फर्ज होने के बावजूद, हज फर्ज होने के बावजूद मुसलमान हज नहीं कर रहे हैं, मगर जर्रा बराबर शर्म और नदामत के आंसू, जर्रा बराबर शर्म और नदामत की कोई लहर, कोई महक हमारे आसपास भड़कती नजर नहीं आ रही है। आज हम फर्ज छोड़कर भी, फर्ज इबादत छोड़कर भी, अभी हाल ही में रमजान का महीना गुजरा, इन्हीं मुसलमानों का हाल उठाकर देखो, जहां मुसलमान अपने सर पर टोपी रखकर, जिस्म पर कुर्ता पैजामा पहनकर मस्जिद की पहली सफों में नजर आता था, आज मस्जिदों के हाल उठाकर देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि किसी भी बड़ी से बड़ी मस्जिद उठाकर देखो, जामा मस्जिद हो या छोटी मस्जिद, किसी भी मस्जिद में एक सब पूरा नमाजी मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। और फिर तुम पूछते हो कि हम परेशान क्यों होते नजर आ रहे हैं। हजरत अमर बिन आस ने जैसे ही खत देखा है, मुसलमानों के दरमियान ऐलान किया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से हुक्म आया है कि मुसलमानों के हालात की तरफ गौर करो कि मुसलमानों में कोई नबी की छोटी सी सुन्नत तो नहीं कज़ा कर रहा है। अब जब ऐलान होता है, तमाम मुसलमान अपने किरदार की तरफ देख रहे होते हैं। कोई अपने चेहरे की दाढ़ी को देख रहा है, कहीं हमारे चेहरे की दाढ़ी एक मुश्त से कम तो नहीं हो गई है। कोई अपनी मूंछों की तरफ देख रहा है, हमारी मूंछें कहीं सुन्नत के मुताबिक तो नहीं, कहीं सुन्नत के खिलाफ तो नहीं जा रही है। कोई अपने लिबास को देख रहा है, कोई अपने नमाज के खुशू खुजू को देख रहा है, कोई अपने वजू के खुशू खुजू को देख रहा है। मुसलमानों ने गौर करना शुरू किया तो उनमें से चंद मुसलमान ऐसे नजर आए जिनमें से चंद मुसलमानों ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने नमाजें तो पाबंदी से अदा की है, हमने कुरान की तिलावत तो पाबंदी से की है, हमने मुस्तफा पर दुरूद तो पाबंदी से पढ़ा है, हमने अपने आप को झूठ से बचाया है, हमने अपने आप को गिबत से बचाया है, हमने अपने आप को वादा खिलाफी से बचाया है, हमने अपने आप को तमाम तर खुराफात से बचाया है। मगर हम ही में से चंद मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने चंद रोज से किसी मसरूफियत के सबब अपने नबी की एक सुन्नत को कज़ा किया है। वो सुन्नत कौन सी है कि हमने चंद रोज से मिसवाक नहीं किया है। इतना कहना था। हजरत अमर इब्ने आस ने सुना है, कहा है कि आज के दिन कोई जंग किसी से नहीं करेगा, कल की सुबह की सफेदी नमूदार होने दो, फजर का वक्त करीब आने दो। फजर का वक्त करीब आया है। अमीरुल सैयदना अमर बिन आस ने मुसलमानों को इकट्ठा किया है कि नमाज फजर अदा करने से पहले, नमाज फजर अदा करने से पहले तमाम तर मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर मिसवाक जैसी सुन्नत को अदा करो। मिसवाक जैसी सुन्नत को अदा करने के बाद तमाम मुसलमान नमाज फजर अदा करते हैं। नमाज फजर अदा
अदा करने के बाद उन तब मुसलमानों ने देखा है कि दुश्मनों की तरफ से एक कासिद आता है, कहता है ऐ अमर इब्ने आस, हम तुमसे जंग नहीं करना चाहते। आप फरमाते हैं कि तुम जंग क्यों नहीं करना चाहते? एक हफ्ते से तो तुम शानदार जंग कर रहे थे, आखिर आज तुम्हारे जंग करने का और बात करने का तरीका क्यों बदल गया? तो उन दुश्मनों ने कहा था ऐ अमर इब्ने आस, आज सुबह सुबह हमने तमाम तर तुम्हारे साथियों को, तमाम तर मुजाहिदों को तुम्हारे नबी की एक छोटी सी सुन्नत पर अमल करते देखा है। जैसे ही मुसलमानों को सुन्नत पर अमल करते देखा है तो हमने देखा है कि मुसलमानों के जंग करने का तेवर भी बदला बदला नजर आ रहा है, उनकी ताकत और तवानाई में भी इजाफा होता नजर आ रहा है। हम तुमसे जंग किए बगैर अपने हथियार को डाल देते हैं। हमने जैसे ही सुबह सुबह मुसलमानों को हाथ में लकड़ी लेकर, हाथ में मिसवाक लेकर अपने दांतों से रगड़ते हुए देखा था तो हम समझ गए थे अब तुमसे मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, चंद मुसलमानों ने नबी की एक छोटी सी सुन्नत को छोड़ दिया है, एक छोटी सी सुन्नत को तर्क किया है तो मुसलमानों पर कामयाबी के रास्ते एक हफ्ते के लिए बंद हो गए हैं। हमारा तुम्हारा हाल क्या होगा? हमने तो साल भर मस्जिदों से कोई राब्ता नहीं रहा, हमारा तो साल भर कुरान से कोई राब्ता ना रहा, हमारा तो साल भर शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा करने का जज्बा भी खत्म हो गया। हमने अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने के बजाय गैरों के तरीके पर अमल करते हुए मुस्तफा के दिल को अस्तूरा चला, मुस्तफा के दिल को तकलीफ पहुंचाते हुए अपने चेहरे पर अस्तूरा भी चला लिया। मुसलमानों, अब वक्त इस बात की इजाजत देता है कि तुम अपने आप को बेदार कर लो, तुम अपने आप को बेदार करके अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को तालीम की तरफ लगा लो। अपने आप को इस वक्त बेदार करने की जरूरत है, अपने किरदार की तरफ झांकने की जरूरत है। हालात इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हम दूसरों को दोषी किसी भी मामले में ठहराते नजर आए, बल्कि अपने किरदार की तरफ तुम्हें अमल करना होगा। अपने किरदार को तुम बेदार कर लोगे तो खुदा की कसम जमाना आज भी हमें इज्जत की निगाह से देखता नजर आएगा। आज हम क्यों जलील हो रहे हैं, आज हम क्यों रुस्वा हो रहे हैं? आज हमने तालीम से अपने बच्चों को बिल्कुल अलग कर लिया है, आज हमने नमाजों से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है, जबकि तुम इस बात को भूल चुके हो मुसलमानों कि खुदा का कलाम उठा कर देखो और पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में किस काम के लिए पैदा फरमाया है। आओ खुदा के कुरान से पूछो तो अल्लाह का कलाम तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे कराता नजर आएगा। ऐ इंसानों और जिन्नातों, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए भेजा है, इबादत के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। रब तबारक व तआला का मंशा तो ये है कि रब तबारक व तआला की मशीयत तो ये है कि मुसलमान अल्लाह की इबादत की तरफ अपनी तवज्जो बढ़ाता नजर आए। मगर आज हम क्या कर रहे हैं मुसलमानों? अपने आप को बेदार करने की जरूरत है। क्या तुमने ऐसे हालात दिन ब दिन हमारे करीब आते नजर आ रहे हैं, अब भी तुम आँख खोलने को तैयार नहीं हो? ये तो रब का शुक्र है कि रब तबारक व तआला ने तुम पर अपनी इनायतों के एक नहीं कई दरवाजे खोले हैं। रब तबारक व तआला ने तुम पर एक नहीं बल्कि अपने फजलो करम से तुम्हें बहुत सारी नेमतों से सरफराज फरमाया है। तुम्हें जरूरत इस बात की है कि हर महाज पर खुदा का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला की हम पर इतनी इनायतें हैं, इतनी सरफराजी, इतनी नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर दरवाजे खोले हैं, अगर इसे शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। रब तबारक व तआला की तमाम तर नेमतों की तरफ तुम गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा रब तबारक व तआला ने हमें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है। 18,000 मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया है, यही नेमत क्या कम है? 18,000 उम्मतों, 18,000 मखलूकात में इंसान बनाया, फिर नबी का गुलाम बनाया, मुस्तफ़ा के दामन करम से वाबस्ता किया। ये नेमत कम नहीं है मेरे भाई कि मुस्तफ़ा जान रहमत के दामन से तुम वाबस्ता हो, नबी के उम्मती हो, उस नबी के तुम उम्मती हो जिस नबी के उम्मती होने की दुआ तमाम 17 से ज़ायद नबियों ने की हो। ये इंसान होना अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे बरगुज़ीदा वली हैं। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से आप गुजर रहे थे, देखा आपने एक कुत्ता उस रास्ते से आ रहा है। आपने उस गुजरते गुजरते आपने देखा कि कुत्ते ने आपसे कुछ बात कही। बायज़ीद बुस्तामी उसी रास्ते पर बैठ कर रोने लगे। आपको जब रोने के बाद आप फुर्सत पाए तो रोने के बाद किसी मुरीद ने आपसे पूछा, हुजूर आप रास्ते पर आते आते आप रोने क्यों लगे? तो आपने फरमाया, इस कुत्ते ने मुझसे
کہا اے بایزید یہ بتاؤ کہ تمہاری کون سی نیکی ایسی تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اور ہمارا کون سا ایسا جرم تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں کتا بنایا؟ آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے رونے لگے۔ انسان ہونا، نبی کا غلام ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں پیدا فرما سکتا تھا، مگر اللہ کا احسان دیکھو، اللہ کا شکر دیکھو کہ اس نے ہمیں انسان اور نبی کا غلام بنایا۔ حضرت بایزید بسطامی سے کتے نے کہا کہ تم اپنی نیکی بتاؤ، میں اپنا میرا جرم بتاؤ کہ کس بنیاد پر تمہیں انسان مجھے کتا بنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں تو ہی بتا دے۔ اس کتے نے کہا اے بایزید اس بات پر کبھی گھمنڈ نہ کرنا کہ تم انسان ہو، انسان ہونے پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس میں تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو رب کا تم پر زیادہ کرم ہو گیا تو اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور اسی رب نے ہمیں بھی کتا بنایا۔ حضرت بایزید بسطامی سے کتے نے ایسی نصیحت آمیز بات کہی کہ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، کسی چیز پر دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سرفرازی ہو، بلندی ہو، علم ہو، فضل ہو، مکان ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، ان تمام چیزوں پر کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنا رشتہ نبی سے، اپنا رشتہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوط کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، زمانے کے ظلم و تشدد بربریت سے بچنا چاہتے ہو، تو مسجدوں کی صفوں کو بھر لو، اپنے بچوں کو علم دنیا کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کروانے والے بن جاؤ، تو زمانہ آج بھی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام تر مشکلات کو دور فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔